This is Nipunesh Kumar Temre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for knowledge representation techniques in artificial intelligence. So, what are the various knowledge representation techniques in artificial intelligence? So, particularly in AI, we can represent the knowledge by using four techniques. The techniques are as logical representation, semantic network representation, frame representation, and production rules. Now we have to study all these techniques one by one. So here, our first representation technique is logical representation. So what exactly logical representation is? So logical representation is a language with some concrete rules which deals with propositions and has no ambiguity in the representation. We have second technique as semantic network representation. So this is somewhat a graphical representation technique in which we will represent the knowledge in the form of a graphical network, and this graphical network consists of nodes representing objects, and there will be the arc in between these nodes which will represent the relationship among those objects. We have third knowledge representation scheme, that is what called as frame representation. So where a frame is a record-like structure which consists of collection of attributes and its values to describe an entity in the world. And we have fourth knowledge representation technique, which is called as production rule. The production rule system consists of condition action pairs, which means if condition then action. Such kind of a knowledge representation will be there. That is left hand side then derives to right hand side. So left hand side will be the condition and right hand side will be the action. So particularly whenever we are representing the knowledge with the help of production rule at that time, every production rule consists of three parts. The first will be the set of production rules. Second, it will be consist of working memory. And third, the recognize act cycle. So these are basically four knowledge representation techniques which are used in artificial intelligence. And now we have to study all these techniques one by one in depth. So here we have first technique which is called as logical representation. So what exactly logical representation is? The logical representation is a language with some concrete rules which deals with propositions and has no ambiguity in the representation. So particularly लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की लैंग्वेज है जहाँ पे हर एक नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट करते वक्त हम प्रीपोजिशन के फॉर्म में नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे और स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन इज दैट हियर यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी. Logical representation means drawing the conclusion based on various conditions. This representation lays down some important communication rules. It consists of precisely defined syntax and semantics which support sound inference. तो जब कभी भी हम knowledge represent करेंगे logical representation में, तो we have to be very careful regarding the syntax and semantics. Now each sentence can be translated into logic using syntax and semantics. तो हमारा syntax और semantics generally किस तरह का रहेगा? तो syntaxes are the rule which decide how we can construct legal sentences in the logic, and it determines which symbols we can use in the knowledge representation. So particularly, syntax deals with how to write these symbols, whereas semantics are the rules by which we can interpret the sentence in the language. Semantic also involve assigning a meaning to each sentence. तो जनरली सिंटैक्स ऐसा पोर्शन है जो उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज से रिलेटेड है, वेयर सेमेंटिक्स उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के मीनिंग की हम बात करेंगे. नाउ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मेनली टू लॉजिक्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल लॉजिक, वेयर एज सेकंड वन इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट लॉजिक. तो जनरली अगर हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट करते तो वी हैव सम एडवांटेजेस. द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इनेबल्स अस टू डू लॉजिकल रीजनिंग. कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म हम इनेबल कराएगा. लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन इज द बेसिस फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेयर एज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम जाएंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास होते हैं. द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हैव सम रेस्ट्रिक्शंस एंड आर चैलेंजिंग टू वर्क विद.
Second disadvantage is that logical representation technique may not be very natural and inference may not be efficient. तो पर्टिकुलरली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जब हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे तो एवरी टाइम हम हमारे फैक्ट को लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे. अब लॉजिक के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त कुछ एडवांटेजेस तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है कि जिसमें नेचुरल तरीके से हम इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकें. एंड दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली अगर हम रीजनिंग परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं या फिर इन्फरेंसेस ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं तो इन्फरेंसेस ड्रॉ करने का तरीका इन केस ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी द नेचुरल. Now we have to go for second knowledge representation scheme, which is called as semantic network representation. So how does we are representing the knowledge with the help of semantic network representation? So semantic networks are alternative of predicate logic for knowledge representation. तो जब कभी भी हम किसी नॉलेज को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल तरीका था. सारा का सारा डेटा हम टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे और कहीं ना कहीं अभी ग्रेजुअली हम टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेमेंटिक नेटवर्क. तो हियर whenever we are representing the semantic network in the form of graphical network, at that time we have to create two types of things. First will be the nodes and second will be the arcs connecting to those nodes. So whatever nodes will be there, these nodes will represent the entity or objects, whereas arcs in between those nodes will indicate the relationship among those objects. Now semantic networks can be categorized the object in different forms and can also link those objects. Semantic networks are easy to understand and can be easily extended. हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जिस तरह का फैक्ट होता है उस फैक्ट को हम सेमेंटिक नेटवर्क के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ रिलेशन. First relationship will be easier relation which will indicate the inheritance, and second type of relationship will be the kind of a relation. So particularly semantic network representation में जब कभी भी हम arcs बनाएंगे तो these arcs will represent the relationship और ये relationship हमारे easier kind of relationship या kind of relationship हो सकता है. तो यहाँ पे semantic network representation के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है और ये एग्जांपल है Raju give a book to Rani. So we have to carefully understand this particular fact. Fact is Raju give a book to Rani. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास अलग अलग एंटिटीज जो आ रही है वो है राजू. सेकंड एंटिटी जो है दैट इज व्हाट अ बुक. थर्ड एंटिटी जो है दैट इज व्हाट अ रानी. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए गिविंग मैकेनिज्म. तो इस तरह के नॉलेज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करते वक्त सबसे पहले हम एंटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे और एंटिटीज जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नोड्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर राजू, रानी एंड बुक. Such kind of nodes will be created. After that we have one mechanism that is what give. और गिव मैकेनिज्म अगर है तो गिव की वजह से कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बन रहा है तो उसका एक इंस्टेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उसका इंस्टेंस अगर हमें क्रिएट करना है तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए गिव का भी एक नोड बनाना पड़ेगा और एक गिव के पर्टिकुलर इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी द इवेंट. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट दैट इज EV7 एंड दैट्स व्हाई जब कभी कोई एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेमेंटिक नेटवर्क में इस तरीके से रहेगा. तो जो इवन एक्शन और उस पर्टिकुलर एक्शन का एक इवेंट रहेगा और उस एक्शन का जो इवेंट का इंस्टेंस बनेगा दैट इंस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ EV7. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जितने भी हमारे पास एंटिटीज है ये एंटिटीज को अभी हम आर्क से जोड़ेंगे, मींस रिलेशनशिप्स अभी हम इंडिकेट करेंगे. तो जनरली रिलेशनशिप्स इंडिकेट करते वक्त बुक, राजू गिव अ बुक टू रानी, तो इसमें पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं इसलिए हमने बुक का भी एक इंस्टेंस क्रिएट किया. दैट्स व्हाई बुक विल बी अ क्लास ऑफ ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड.
लेकिन उन बुक में से हम एक बुक की बात कर रहे हैं जो कि राजू ने रानी को दिया था। तो वो बुक जो होगा, उस बुक का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस, दैट इज व्हाट इंडिकेटेड बाय BK23। एंड नाउ there will be the relationship among Raju, EV7, BK23 and Rani, then this relation will be like this. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राजू एंड इवेंट 7 में जो रिलेशनशिप है, इस इवेंट 7 को परफॉर्म करने वाला एजेंट जो है, दैट इज व्हाट राजू। तो दिस इज व्हाट इंडिकेटेड बाय दिस पर्टिकुलर वे। Event 7 is occurring upon one object, that is BK23, therefore there is an object relationship. Then events, due to event 7, there is one beneficiary, that is what Rani, and that's why we have to represent with the beneficiary relationship. So Raju give a book to Rani, इस particular fact को अगर हमें represent करना है तो with the help of semantic network we can represent like this. Now what is the advantage of semantic network? The semantic networks are natural representation of a logic, क्योंकि semantic network generally जब हम बनाए थे तो बनाते वक्त हमने entities कौन से हैं, entities के कहीं events तो नहीं है, और अगर इवेंट्स होंगे तो इवेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस तरह से सेमेंटिक नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया था। तो दैट इज व्हाई इट इज अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। सेमेंटिक नेटवर्क कन्वे मीनिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अभी हमने देखा था कि सेमेंटिक नेटवर्क को देखते हुए हमें पता चल रहा था कि उस फैक्ट का बेसिक मतलब क्या है। तो जैसे राजू जी व बुक टू रानी, ये इस पर्टिकुलर फैक्ट को हमने देखा था, और उस फैक्ट का सेमेंटिक नेटवर्क अगर हम देख रहे थे तो सेमेंटिक नेटवर्क क्लियरली इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर इंडिकेट करा रहा था कि वो सेमेंटिक नेटवर्क कहना क्या चाहता है। These networks are simple and easily understandable. So particularly these three are the advantages of semantic network, and now we have to go for the disadvantages of semantic network. So here, first disadvantage is that semantic networks take more computational time at runtime, as we need to traverse a complete network tree to answer some question. तो particularly जब कभी भी हम कोई computations perform करेंगे तो computations perform करते हो with the help of semantic network representation, अगर हम reasoning perform कर रहे हैं तो ये reasoning के लिए लगने वाला computational time जो रहेगा, that will be the maximum time. Why? Because किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए हो सकता है हमें कंप्लीट नेटवर्क को ट्रैवर्स करना पड़े, और कंप्लीट नेटवर्क को अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसके लिए काफी टाइम लगेगा। So that's why computational time is more in case of semantic network. Second, semantic network try to model human-like memory to store information, but in practice it is not possible to build such vast semantic network. Generally अगर हम human mechanism की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, एंड सिमिलर मैकेनिज्म वी आर ट्राइंग टू मॉडल इन केस ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क आल्सो। बट जब सेमेंटिक नेटवर्क में इस तरह का नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने की बात जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाई अगर ह्यूमन लाइक मॉडल विद द हेल्प ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम जाएंगे तो ऐसे नेटवर्क काफी वास्ट बनेंगे, और ऐसे वास्ट नेटवर्क में फिर से कंप्यूटेशनल के लिए हमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। थर्ड, this type of representation are inadequate as they do not have any equivalent quantifier. तो particularly आगे चल के हम quantifiers की बात करेंगे, यूनिवर्सल quantifiers होते हैं जैसे कि for all, for some, nobody, इस तरह के quantifiers होते हैं। तो such kind of quantifier representation is not possible in case of semantic network. Semantic network do not have any standard definition for the link names, जैसे कि अभी जब हमने relationships represent किए थे तो हमने एजेंट बोला था, लेकिन एजेंट की जगह कोई और रिलेशनशिप लिख सकता है। तो दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली आर्क को रीनेम किससे करना है, या आर्क के लिए अगर हम कोई वेट असाइन कर रहे हैं तो वो वेट या फिर वो रिलेशनशिप का नाम क्या रहेगा, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन केस ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क। एंड लास्ट disadvantage is that these networks are not intelligent and dependent on the creator of the system. तो पर्टिकुलरली जो कोई भी क्रिएट कर रहा है उसके ही इंटेलिजेंसी पे सेमेंटिक नेटवर्क का रीजनिंग पावर या फिर नॉलेज पावर डिपेंड करेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमेंटिक नेटवर्क। नाउ we have to go for our third knowledge representation scheme, that is what called as a frame representation. So what exactly frame representation is?
The frame is a record-like structure which consists of collection of attributes and values to describe an entity in the world. तो पर्टिकुलरली जितने भी एंटिटीज है, ये एंटिटीज को हम रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हो उस पर्टिकुलर एंटिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और उनसे रिलेटेड वैल्यूज जो रहेंगे वो वैल्यूज को हम फ्रेम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. Frames are the AI data structure which divides knowledge into substructures by representing the stereotype situations. It consists of collection of slots and slots values, and these slots may be of any type and sizes. Slots have names and values which are called facets. तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हमको दिख रही है, that is not called as a facets. तो facets का मतलब क्या है? तो पर्टिकुलरली फ्रेम में काफी सारे स्लॉट्स रहेंगे और स्लॉट नेम और वैल्यूज को जनरली हम फैसेट्स कहते हैं. Frames are derived from the semantic networks and later evolved into our modern day classes and objects. तो कहीं ना कहीं फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर हमारे सेमेंटिक नेटवर्क से ही निकल के आया हुआ है. तो सेमेंटिक नेटवर्क्स में जितने भी हमारे नोड्स थे वो नोड्स हमारे एंटिटी थे या ऑब्जेक्ट्स थे, और वो एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक फ्रेम बनाते थे. और सिंगल फ्रेम इज नॉट मच यूजफुल. तो पर्टिकुलरली किसी डोमेन से रिलेटेड नॉलेज को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंगल फ्रेम की फॉर्म में अगर हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया है तो वो रेयरली हमारे लिए यूजफुल रहेगा. क्यों? क्योंकि पूरे नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ढेर सारे फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई फ्रेम के थ्रू अगर आपको नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो रादर देन यूजिंग अ सिंगल फ्रेम, अ सेट ऑफ फ्रेम्स वी हैव टू यूज. The frame systems consist of collection of frames which are connected to each other. In the frame, knowledge about an object or event can be stored together in the knowledge base. The frame is a type of technology which is widely used in various applications, including natural language processing and machine vision. तो यहाँ पे फ्रेम रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल हमने लिया है, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग वन बुक. तो एक बुक का कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रेम में हमने काफी सारे स्लॉट्स और फिल्टर्स रखे हैं. तो पहला स्लॉट है टाइटल. तो बुक का टाइटल क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ब्रांच कौन सा है? तो कंप्यूटर साइंस. ऑथर कौन है? तो रिचर्ड नाइट. एडिशन कौन सा है? थर्ड एडिशन. ईयर 2020 एंड पेज नंबर 210. तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर. तो फ्रेम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, काफी सारे स्लॉट्स एंड काफी सारे फिल्टर्स हमारे पास रहेंगे. तो स्लॉट्स एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यूज इस तरह का स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम जनरली नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं. और नॉलेज रिप्रेजेंट करते वक्त सिंगल फ्रेम यूज करने के बजाय हम कलेक्शन ऑफ फ्रेम यूज करते हैं. और ये वाले फ्रेम आपके क्लास टाइप के फ्रेम या फिर इंस्टेंस टाइप के फ्रेम हो सकते. नाउ वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेम रिप्रेजेंटेशन. द फ्रेम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेक्स द प्रोग्रामर इजियर by grouping the related data. The frame representation is comparably flexible and used by many applications in artificial intelligence. It is very easy to add slots for new attributes and relations. It is easy to include default data to search for missing values, and frame representation is easy to understand and visualize. So particularly these are the advantages of frame representation. And now we have to go for disadvantages. The first disadvantage is that inference mechanism cannot be smoothly proceeded by the frame representation. Generally inferences draw करना इतना आसान नहीं होता है frame representation में, and frame representation has much generalized approach. Generally specification की काफी कम बात यहाँ पे करते हैं, generalization की बात ज्यादा हो रही है. तो these are the disadvantages of frame representation. So now we have fourth knowledge representation technique, that is a production rules. So what exactly production rules are? The production rules system consists of condition action pairs, which means if condition then action. तो particularly production rules के थ्रू जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हमें काफी सारे प्रोडक्शन रूल बनाने पड़ेंगे. और किसी भी प्रोडक्शन रूल की बात अगर करेंगे तो प्रोडक्शन रूल में दो पार्ट रहेंगे, इफ लेफ्ट हैंड साइड देन डिराइव टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड को जनरली हम कंडीशन कहेंगे, जबकि राइट हैंड साइड को जनरली हम एक्शन कहेंगे. Production rules mainly has three parts: the set of production rules, working memory, and recognize at cycle. And whenever we are proceeding with the production rule, at that time production rule agent checks for the condition, and if condition exists in the production rule fires and corresponding action is carried out. So particularly
प्रोडक्शन रूल मैकेनिज्म के थ्रू जब हम रीजनिंग परफॉर्म करेंगे तो रीजनिंग परफॉर्म करते वक्त हमारे पास नॉलेज बेस रहेगा और उस नॉलेज बेस में काफी सारे प्रोडक्शन रूल्स हम स्टोर कर करेंगे। हर प्रोडक्शन को रूल का फॉर्म रहेगा यू लेफ्ट हैंड साइड डी टू राइट हैंड साइड। जबकि जब किसी पर्टिकुलर फैक्ट को सॉल्व करने की बात हम करेंगे तो फैक्ट को सॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो हमें वर्किंग मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म द रीजनिंग व्हाट वी हैव टू डू, our production rule agent checks for the content of working memory and the content of knowledge base. So at that time कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी को कितने प्रोडक्शन रूल्स मैच हो रहे हैं उसके साथ हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर हमारा मैचिंग हो रहा है तो मैचिंग में से बेस्ट पॉसिबल रूल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और बेस्ट पॉसिबल रूल अगर फाइंड आउट हो गया तो फाइंड आउट करने के बाद में फिर हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई प्रोडक्शन रूल इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सबसे पहले तो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल बनाने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए नॉलेज बेस। वर्किंग मेमोरी हमारे पास लगेगा, दैट्स व्हाई हियर वी हैव वर्किंग मेमोरी। एंड जब कभी भी किसी रूल को फायर करने की बात करेंगे तो एट दैट टाइम वी हैव टू मैच द कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी विद द कंटेंट ऑफ नॉलेज बेस, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज। अगर मैचिंग अगर हो रहा है तो मैचिंग होने के हिसाब से हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एक्ट। And this particular cycle we have to perform repeatedly and that's why cycle। तो इन्फरेंस ड्रॉ करने वाला मैकेनिज्म जो रहेगा वो रिकॉग्नाइज, एक्ट एंड साइकिल इस तरीके से परफॉर्म होगा। प्रोडक्शन रूल्स के फॉर्म में नॉलेज को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन रूल का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा। तो प्रोडक्शन रूल का स्ट्रक्चर एक तो सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब हम सिंपल रूल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा, यू प्रीमाइस देन कंक्लूजन। अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स रूल की बात अगर कर रहे हैं तो प्रीमाइसेस के बीच में एंड ऑपरेटर रह सकता है या फिर प्रीमाइसेस के बीच में और ऑपरेटर या फिर एंड और का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यू प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू देन कंक्लूजन, या फिर यू प्रीमाइस वन और प्रीमाइस टू देन कंक्लूजन, या फिर यू प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू और प्रीमाइस थ्री देन कंक्लूजन। इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने हमारे फैक्ट को प्रोडक्शन रूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। तो एग्जाम्पल है, इफ द पेशेंट हैज अ सोर थ्रोट एंड वी सस्पेक्ट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देन वी बिलीव द पेशेंट हैज अ स्ट्रेप थ्रोट। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन रूल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्रोडक्शन रूल? द प्रोडक्शन रूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो भी हमने प्रोडक्शन रूल लिखे हैं कहीं ना कहीं ये इंग्लिश में लिखे हैं। तो प्रोडक्शन रूल्स को लिखने का तरीका जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज and that's why it will be the easier for human being. The production rules are highly modular so we can easily remove, add or modify the individual. Now we have to go for the disadvantages of production rule. Production rule system does not exhibit any learning capabilities and do not store the result of problem for the future issues. This is what one disadvantage. Learning capabilities बिल्कुल भी नहीं होती है जिस वजह से फ्यूचर में नॉलेज को स्टोर करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। एंड सेकंड, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मेनी रूल्स में एक्टिव, हेंस रूल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम्स आर नॉट एफिशिएंट। तो ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी सारे रूल्स अगर हमारे मैच हो रहे हैं तो काफी सारे रूल्स जब मैच हो रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से काफी सारे रूल्स को हमें एक्टिव रखना पड़ेगा और काफी सारे रूल्स को अगर हम एक्टिव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है। So that's why this particular technique is inefficient. So this was all about the various knowledge representation techniques in artificial intelligence, their advantages and disadvantages. Thank you.